spends hours is hour every week connected with children across the ac- nation. across the nation, thinking about their future and thinking through their Their issues. 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 Here are Here, here are Dr. Kalam answers to the questions that some children have asked him. okay, stop. Share with the class anything you know about Sri APJ Abdul Kalam. नाम सुना आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का? क्या जानते हैं आप उसके उनके बारे में? मैम अब्दुल कलाम भारत के पहले राष्ट्रपति थे और साइंटिस्ट भी थे। फाइव मैन के नाम से जाना जाता था। हाँ, तो प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर एवरी वीक कनेक्टेड विद चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन। मतलब डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जो हर सप्ताह दुनिया भर के बच्चों से मिलते थे। मतलब देश में जितने भी बच्चे थे वो हर सप्ताह उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे, थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज। उनके फ्यूचर के बारे में सोचते थे और उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम जो भी होते थे उनके बारे में सोचते थे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते थे, ठीक है। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। यहाँ पर डॉक्टर कलाम क्या करते थे? जब वो हर हफ्ता बच्चों से मिलते थे तो वहां पर बच्चे डॉक्टर कलाम से क्वेश्चन करते थे, जिसका आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देते थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ के बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं और क्या क्या क्वेश्चन करते हैं कलाम जी से और वो क्या क्या आंसर देते हैं, ठीक है। दृष्टि रीड कीजिए। Question: what is your full name and who was your best friend in school? Kalam: my full name is Abul Pakir Jainulabdin. जैनुलाब्दीन Jainulabdin Abdul Kalam. During my school days, Pakshi Ramnath Shastri was my best friend. Joshi Bhumi is 11th institution, Kota Kanya Vinay Mandir, City, Rajkot. Question: how far is the favor of fortune necessary? Kalam: hard work comes first. Fortune will favor you if you are persistent in hard work. There is a famous saying, God helps those who help themselves. There is another saying that it makes many years of hard work to make an overnight success. Desh Ranjan Institution, NIC, City, New Delhi. Question: please tell me who would have been the first scientist in the world? Kalam: science was born and survives only by questions. The whole foundation of science is question, and as parents and teachers know well, children are the source of unending questions. Hence, child is the first scientist. B. Ishita studied 6th institution, study Berry's school, City, Chennai. Question: what is the secret behind remembering various formulas of science and maths? Kalam, by constant application,
one can remember various formulas of science and maths. Umang Dev studied 10th institution, Second Academy, City Mumbai. Question: which has been the happiest day of your life? Kalam: I was once working doctors to get lightweight flow reaction orthos FROS for polio affected persons. After talking the measurement when the children were fitted with it, weighing 1 to 10th of the original weight which they were carrying, the children started running, walking, and paddling cycles. Their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents. The sight of happiness on their faces was bliss to me. R. Stop. Arvind studied. स्टॉप। देखिए बच्चे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, कहाँ के बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट धनराज, स्टूडेंट का नाम है धनराज, जो कि 8th स्टैंडर्ड में है और कहाँ से है वो, कसारगोड़ से। ठीक है, उसका क्वेश्चन है व्हाट इज योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। आपका पूरा नाम क्या है और आपके स्कूल में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था। ठीक है, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था आपके स्कूल में। तो कलाम क्या आंसर देते हैं, माय फुल नेम इज, क्या है, क्या नाम है, फुल नेम क्या है, अबुल पाकरी। अबुल पाकी। फुल क्या है, अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पक्षी रामनाथ शास्त्री वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उनके स्कूल के दिनों में उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे, पक्षी रामनाथ शास्त्री। हाँ, रामनाथ शास्त्री। उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट है जोशी भूमि, जो कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर, सिटी राजकोट। उसका क्वेश्चन है हाउ फार इज द फेवर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी। फेवर ऑफ फॉर्च्यून मीन्स होता है नसीब का एहसान, मतलब नसीब का एहसान कितना जरूरी है। ठीक है, मतलब किसी किसी का नसीब बहुत अच्छा होता है ना, तो वो वही पूछ रहे कि नसीब का एहसान कितना जरूरी है। तो कलाम सर क्या आंसर देते हैं, हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट। सबसे पहले क्या आता है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत आती है ना। फॉर्च्यून विल फेवर इफ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। फॉर्च्यून विल फेवर मतलब नसीब कब कब आप पे एहसान करती है, जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तब। देयर इज अ फेमस सेइंग गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। एक फेमस कहावत है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता। ठीक है, देयर इज अनदर सेइंग दैट इट टेक्स मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस। मतलब एक और कहावत है कि एक रात की सफलता पाने के लिए बहुत सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद है देवेश रंजन, इंस्टीट्यूशन NIC, जो है सिटी न्यू दिल्ली का। ठीक है, उसका क्वेश्चन है प्लीज टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे बताइए कि वर्ल्ड में फर्स्ट साइंटिस्ट कौन होना चाहिए, कौन होगा। ठीक है, तो कलाम सर क्या आंसर करते हैं, साइंस वाज बोर्न एंड सर्वाइव ओनली बाय क्वेश्चंस। मतलब साइंस का जन्म और साइंस का जीवन जो है वो क्वेश्चन पर ही है, प्रश्न पर ही। साइंस खुद एक प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं साइंस में। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज क्वेश्चनिंग। मतलब साइंस का जो नींव है वो खुद एक क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर नोन वेल चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चन, हेंस चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। और एक पेरेंट के जगह पे या फिर एक टीचर के जगह पे हम जानते हैं कि एक पेरेंट के नाते भी और एक टीचर के नाते भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अंतहीन क्वेश्चन के खजाना होते हैं। मतलब आप लोगों को पता है बच्चे जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चलता है। ठीक है, जो अनएंडिंग होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं को कलाम सर कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अनएंडिंग क्वेश्चन के सोर्स होते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन होना चाहिए,
फर्स्ट साइंटिस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए, है ना? क्लियर है? मैम। ओके, नेक्स्ट बी इशिता। नेक्स्ट स्टूडेंट है बी इशिता, जो कि 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और कौन से स्कूल से है? सेंट बेडेस स्कूल, सिटी चेन्नई से। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। मतलब साइंस या फिर मैथ्स के फॉर्मूला को याद रखने का सबसे अच्छा सीक्रेट क्या है, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? क्योंकि साइंस या फिर मैथ्स के फॉर्मूला इजीली याद नहीं होते हैं ना, तो वो वही Yes, पूछ रहे हैं कि साइंस या फिर मैथ्स के फॉर्मूला को याद रखने के पीछे क्या सीक्रेट है? तो कलाम सर क्या आंसर देते हैं? बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेम्बर वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। मतलब एक कांस्टेंट एप्लीकेशन से, मतलब अच्छे से ध्यान लगाकर साइंस या फिर मैथ्स के किसी भी फॉर्मूले को कोई भी याद रख सकता है। नेक्स्ट उमंग दवे, जो कि 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और सिल्कन एकेडमी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, जो कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, उसका क्वेश्चन है विच हैज बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन कौन सा था? ठीक है, तो कलाम सर क्या आंसर करते हैं? I was once working with doctors to get lightweight flow reaction orthosis for polio affected person। एक बार मैं पोलियो अफेक्टेड पर्सन के लिए कुछ डॉक्टर्स के साथ में फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस के साथ काम कर रहा था। फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस क्या होता है? जिसमें जो पोलियो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, पोलियो अफेक्टेड पर्सन आप तो देखे होंगे, ठीक है, जिनका पैर पतला होता है ना, हाथ पैर पतले पतले होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं ना, पोलियो अफेक्टेड पर्सन देखे ना आपने? यस मैम। तो उनके लिए क्या किया जाता है? उनके नी से, घुटनों से लेकर प्लास्टिक का एक तरीका होता है, मतलब एक चीज बनाया जाता है जो उनके घुटनों पे लगाया जाता है और जो उनकी फिट तक होता है, ठीक है, जिससे वो चल पाए। ऐसा कुछ यूजफुल सब्सटेंस उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो जब वो उनके साथ काम कर रहे थे, कलाम सर जब डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे थे पोलियो अफेक्टेड पर्सन के लिए, आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट, देन द children were fitted with it weighing 1/10 of the original weight which they were carrying. The children started running। जब उन्होंने बच्चों का मेजरमेंट लिया, तो जो चिल्ड्रन इसमें जब वो बच्चों का मेजरमेंट ले रहे थे, तो जो चिल्ड्रन इसमें फिट हो रहे थे, ठीक है, जिनका वेट क्या था? 1/10 था ओरिजिनल वेट का, वो 1/10 को कैरी कर रहे थे, ठीक है। और वो बच्चे जब चलना स्टार्ट कर रहे थे, जब वो दौड़ रहे थे, जब वो चल रहे थे या फिर साइकिल चला रहे थे, तो उनके इस एक्शन को देखकर उनके जो पेरेंट्स थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैंने अभी बताया ना कि पोलियो अफेक्टेड जो बच्चे थे, उनके लिए जब डॉक्टर कलाम डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे थे और उनके घुटनों पर जब उस प्लास्टिक से बने हुए सब्सटेंस को लगाया गया, जिसे फ्लो रिएक्शन ऑर्थोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उन्हें लगाने के बाद में जो बच्चे थे वो दौड़ने लगे, चलने लगे, यहाँ तक कि वो साइकिल भी चलाने लगे, जिसे देखकर उनके जो पेरेंट्स थे, बच्चों के जो पेरेंट्स थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। द साइट ऑफ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वाज ब्लिस टू मी। और इस तरह से उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। वो उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, मैम। आकृति रीड। यस मैम। आज मैम स्टेट के बाद क्या लिखा है?
R. Arvind stayed third standard third standard state Bidesh School City, Chennai. Question: Can you tell us any unforgettable incident from your childhood? Kalam: I am remembering that of my class V teacher Sri Sivasramina Niam. Sivasramina. He taught us in his lecture how birds fly. He showed us live example at the Sia Sore of Ramesh Verma. Rameshwaram. Rameshwaram. And unforgettable option which is my memory forever. It helped me to take up the study for science of Okay, science. so अब क्वेश्चन है सॉरी आर अरविंद कौन से स्टैंडर्ड का? थर्ड स्टैंडर्ड का, जो कि है सेंट बिडेस स्कूल का और सिटी है चेन्नई। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मतलब क्या आपको अपने बचपन की कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटना याद है जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाए। अनफॉरगेटेबल मीन्स कभी भी नहीं भूलना, है ना, कभी भी नहीं भूल पाए। कलाम सर का आंसर था आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास फिफ्थ टीचर। मुझे मेरे क्लास फिफ्थ के टीचर याद है जिनका नाम क्या था? श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर। He taught us in his lecture how birds fly. उन्होंने अपने लेक्चर में हमें क्या सिखाया कि बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं। He showed us real life example at the seashore of रामेश्वरम। उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल शो किया था उनके सामने, कहाँ ले जाकर? रामेश्वरम में जाकर सी शोर दिखाया। ठीक है, जो एग्जाम्पल उन्होंने शो किया था, रियल एग्जाम्पल उन्हें दिखाया था कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। इट इज एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एज्ड इन माय मेमोरी फॉरएवर। मतलब यह एक ऐसा ओकेजन था, यह एक ऐसा अवसर था जिसे मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाया। इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस। और जिसने मुझे साइंस की पढ़ाई करने में बहुत ही हेल्प किया। ठीक है, Yes, क्लियर है ma'am. यहाँ पे? Yes, Okay. ma'am. आगे बढ़ते हैं। जब जो रीड करो। यस मैम। मैम मुझे कहाँ से रीड करना है? अभिलाष वर्मा। यस मैम। अभिलाष वर्मा स्टैंडर्ड 8th इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल सिटी एटवा। क्वेश्चन: You are an idle man. Please give us your suggestions to become good human. Kalam: Work in scientific paper combined with spirituality will make you a good human being. Try to find good things in others. Harsh Chandak, Standard 7, Dr. S. Radhakrishnan Vidyalaya, City Malad, Mumbai. Question: You give away bravery award every year. What is your definition of courage? Kalam: saving others from disaster without minding about your own safety is courage. Master Rahul Mehta, Standard 8, City Ahmedabad. Tejas Sawant, Standard 9th, City Bombay. Question: What is your message to the citizens of India? Kalam: My message to the youth is given in the 10 which I consider Stop. and Stop reading करो ना। नहीं। हाँ, आगे देखो।
हाँ, आगे क्वेश्चन है अभिलाष वर्मा का, जो कि 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। कहाँ से है? पुलिस मॉडर्न स्कूल, सिटी इटावा। ठीक है, उसका क्वेश्चन है, यू आर एन आइडियल मैन, प्लीज गिव अस योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स। उसने पूछा कि आप एक आदर्श इंसान है। आइडियल मैन क्या है? आदर्श इंसान है। तो मुझे कुछ ऐसा सजेशन दीजिए। किस बारे में सजेशन चाहिए था उसे? एक अच्छे इंसान बनने के बारे में। ठीक है, गुड ह्यूमन बींग्स बनने के बारे में उसे सजेशन चाहिए था। कलाम सर का आंसर था, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी will make you a good human beings. Try to find good things in others. मतलब टेम्पर मीन्स होता है मनोवृत्ति, और स्पिरिचुअलिटी मीन्स होता है आध्यात्मिकता। ठीक है, तो हार्ड वर्क और साइंटिफिक मनोवृत्ति को जब हम कंबाइन कर देते हैं आध्यात्मिकता के साथ में, तो वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और आपको दूसरे के अंदर में अच्छी चीजों को देखने की, अच्छी चीजों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जब आप दूसरों के अंदर अच्छी चीजों को खोज पाते हैं, अच्छी चीजों को देख पाते हैं, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चंदाक का, स्टैंडर्ड है उसका 7th स्टैंडर्ड का, और स्कूल है उसका डॉक्टर एस राधा कृष्णा विद्यालय, सिटी मलाड, मुंबई। इसका क्वेश्चन क्या है, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड्स एवरी ईयर, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ करेज। आप हर साल ब्रेवरी अवार्ड देते हैं, बहादुरी के लिए पुरस्कार देते हैं, तो आपके हिसाब से करेज मीन्स साहस का डेफिनेशन क्या है ना? तो कलाम सर क्या आंसर करते हैं, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज करेज। मतलब किसी दूसरे को आपदा से बचाना, डिजास्टर से बचाना, बिना अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे को आपदा से बचाना, डिजास्टर से बचाना ही क्या है? करेज है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा, मुसीबत से बचाना। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मास्टर राहुल मेहता, स्टैंडर्ड 8th, सिटी अहमदाबाद, जस्ट सावंत, स्टैंडर्ड 9th, सिटी बॉम्बे। ये दोनों का क्वेश्चन है। ठीक है, उनका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन्स के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अनुषा, तो कलाम सर क्या आंसर देते हैं, My message to the youth is given in the 10-point oath which I normally administer and is as follows. मतलब मेरा मैसेज यूथ के लिए, स्पेशली किसके लिए? यूथ के लिए है, जो 10 पॉइंट में है। ओथ मीन्स होता है कसम। ठीक है, 10 पॉइंट में कुछ कस्में हैं जिसे वो नॉर्मली मानते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it. इसका मतलब है, मैं अपनी शिक्षा या समर्पण के साथ काम करूंगा और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपनी पूरी शिक्षा या समर्पण, मैं अपनी पूरी शिक्षा समर्पण के साथ, और काम भी अपने समर्पण के साथ करूंगा, और उसमें पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन करूंगा। ठीक है, सेकंड है, from now onwards I will teach at least 10% to read and write those who cannot read and write. अब से मैं कम से कम 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, I will plant at least 10 saplings and shall ensure their growth through constant care. मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और लगातार देखभाल के माध्यम से उनकी वृद्धि को सुनिश्चित करूंगा। मतलब इन्हें बढ़ रहे हैं या नहीं, उसको देखूंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली बैन अवे एट लीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। एडिक्शन मीन्स होता है लत लगना, व्यसन। ठीक है,
और गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ खेलना, ठीक। तो मैं ग्रामीण, रूरल मीन्स क्या होता है, ग्रामीण गांव वाला एरिया, और अर्बन मीन्स होता है शहरी। मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का दौरा करूंगा और कम से कम 5 व्यक्तियों को व्यसन और जुए से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मतलब 5 व्यक्तियों को गैम्बलिंग और एडिक्शन से दूर कर दूंगा, छुड़वा दूंगा उनकी आदत को, ठीक है। नेक्स्ट है, I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren. एंडिवर मीन्स होता है साहस और ब्रिथर मीन्स होता है भाई, ठीक है। तो आई विल कॉन्स्टेंटली एंडिवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रिथर मीन्स मैं अपने पीड़ित भाइयों के दर्द को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करूंगा। क्या है इसका मतलब? मैं अपने पीड़ित भाइयों के दर्द को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करूंगा। नेक्स्ट, I will not support any religious, caste and language differentiation. Religious means होता है धर्म, caste means जाति और language means भाषा। तो मैं कभी भी धर्म, जाति या भाषा में जो विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं, उनका सपोर्ट नहीं करूंगा। I will be honest and endeavor to make a corruption free society. मैं एक ईमानदार और साहसी इंसान बनूंगा जो कि सोसाइटी को करप्शन फ्री कर सके, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके। I will work for becoming an enlightened citizen and make my family righteous. Enlightened means होता है प्रबुद्ध और righteous means होता है न्यायपरायण। मतलब मैं किनके लिए काम करूंगा? मैं किनके लिए काम करूंगा? प्रबुद्ध सिटीजन, समझदार व्यक्तियों के लिए, और अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को भी उसी तरह की बनाने की कोशिश करूंगा। किस तरह का? एनलाइटेड और राइटियस बनाने की कोशिश करूंगा, न्यायपरायण और प्रबुद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us. मैं हमेशा मेंटली और फिजिकली जो विकलांग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या विकलांग जो लोग होते हैं, उनका दोस्त बनने की कोशिश करूंगा और उन्हें नॉर्मल फील कराने की पूरी कोशिश करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा। जैसे कि हम रहते हैं उसी तरह से उनको भी फील कराने की कोशिश करूंगा, नॉर्मल इंसान की तरह। नेक्स्ट, I will proudly celebrate the success of my country and my people. मैं बहुत गर्व से अपने देश की सक्सेस को और अपने लोगों के सक्सेस को सेलिब्रेट करूंगा। क्लियर है? यस मैम। समझ आया सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इसका रिटर्न हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। यस मैम। क्लासेस